Hey guys, what's up? I hope you are all doing great because your exams are very near. And today I'm going to do all the one shot revision for all of you for the business studies. And it's all the processes you have done in any of your chapter. And I have also included one different process which many students skip, but it takes very essential marks in your board exams because each and every mark is very helpful for all of you. So please don't miss this. Watch till the end and you will must have the benefit. And I know you have done this many times, but this is the most efficient revision you can do in your board exams. Let's get started. सबसे पहले हमारा आता है प्लानिंग का प्रोसेस. इसमें हमारे होते हैं 7 स्टेप्स. तो फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव, जिसमें आप सभी के सभी ऑब्जेक्टिव सेट करते हो. देखो यार, मैं आपको यहाँ पर वन शॉट रिवीजन कराने जा रहा हूँ, ना कि स्टार्टिंग से आपको कराने जा रहा हूँ. मैं ये सोच रहा हूँ आपने पहले 1-2 बार किया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं आपको सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ फास्ट वे में, सो दैट यू कैन कंप्लीट योर ऑल द प्रोसेसेस इन मिनिमम टाइम, है ना. लेट गेट स्टार्ट हियर. फर्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस इज द सेटिंग ऑब्जेक्टिव. देन developing premises, you set any different assumption that may carry in the future, है ना. Next, identify alternative courses of action and then evaluate all the alternative courses that best you have to choose. Yes, select an alternative, है ना. Next, implement the plan, and the last and not the least, follow up action, because if you not follow the action then there is no any you can do planning, है ना. Let's go to next process, and that is our organizing process. In this, our first step is identification and division of work, departmentalization. Next है or assignment of duties, establishing authority reporting relationship. बस इसमें यही चाह रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग का. दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूं. आइडिया इसका वो शॉर्ट फॉर्म है जो आप निमोनिक रेडी कर सकते हो, और ऊपर वाले का भी आपको बता देता हूं. इसका आप कर सकते हो एसडाइजिफ. ये मैंने और मेरे फ्रेंड ने दोनों ने मिलकर बनाया था. ये क्लास में बैठे थे हम, तो हमने इसका बहुत बढ़िया बनाया है. एसडाइजिफ. एस फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डी फॉर डेवलपिंग प्रीमिसेस, आई फॉर आइडेंटिफाइंग, ई फॉर इवेल्युएटिंग, एस फॉर सिलेक्टिंग, I for implementing, and last and not the least, follow up action. Next, organizing plan. Idea, identification and division of work, departmentalization, assignment of duties, standard relationship. Next is our staffing process. There are 8 steps in this staffing process. Let's start this also. इसमें आता है हमारा सबसे पहले एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, दैट हाउ मेनी स्टाफ डिड यू नीड इन योर दैट एरिया, सो दैट यू कैन स्टाफ अकॉर्डिंगली. इसमें हमारे 2 चीजें आते हैं, वर्कलोड एनालिसिस, है ना, और नेक्स्ट वर्कफोर्स एनालिसिस. दिस बोथ आर इंपॉर्टेंट. फर्स्टली वर्कलोड एनालिसिस इज डन, देन वर्कफोर्स एनालिसिस इज डन, दैट हाउ मेनी फोर्स यू हैव ऑलरेडी इन योर कंपनी. नेक्स्ट रिक्रूटमेंट, then you will recruit accordingly, that you will check its difference, both of the difference, this and this. If there is any difference, any deficiency, then you have to keep the surplus so that you can complete its manpower. That is known as recruitment. Then selection out of these recruited persons. Next, placement and orientation. तो आप उन सभी एम्प्लॉयज को, स्टाफ को ओरिएंट करोगे कि हाँ हमारी ये वाली कंपनी, उनको पूरा दिखाओगे, शोकेस करोगे, so that they can be familiar with that the environment. Next, training and development. There are 2 types of, है ना, training and development: on the job training and off the job training. Next, performance appraisal, because if you will not do any performance appraisal, then employee will not get that will benefit, है ना. And if he will be more capable to do, then he will also do. Next, promotion and career planning. No, last, compensation. नेक्स्ट हम चलते हैं सिलेक्शन के प्रोसेस पे, जो कि हमारा स्टाफिंग का ही एक पार्ट है. सिलेक्शन का प्रोसेस इट्स ऑल्सो वेरी इजी. प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू,
reference and background check, next selection decision, next medical examination, next job offer, and the last contract of the employment. चले यार नेक्स्ट पे बताओ, आर यू ऑल सेट? लेट्स गो नेक्स्ट, बताओ जल्दी, लेट्स गो। नेक्स्ट हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस। ये बहुत बच्चों को इजी लगता है यार, है ना, ये आता भी एग्जाम में। इन प्रीवियस ईयर द सेम हैज बीन कम, दीज आई विल एक्सप्लेन यू प्रॉपरली। दिस इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस। फर्स्ट देयर इज सेंडर, देन वन रिसीवर। देयर आर टू पर्सन, सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर सेंड अ मैसेज इन द मीडिया, मतलब सेंडर जो मैसेज भेजेगा वो पहले अपने फोन में कहेगा, अगर वो फोन के थ्रू भेज रहा, फोन में कहेगा, तो उसके बाद जो वो मैसेज है वो एनकोड होगा जब मीडिया के पास जाएगा। मीडिया के पास जाने के बाद वो डिकोड होगा और वो रिसीवर के पास चले जाएगा। ठीक है, रिसीवर के पास जब जाएगा उसको लास्ट स्टेप, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट ही ऑल्सो हैव टू गिव द फीडबैक दैट हाउ ही लाइक्स द कम्युनिकेशन, इफ नॉट देन ही हैव टू एक्सप्लेन इट अगेन। देयर इज वन थिंग, नॉइस, दिस, यस, नॉइस, देयर इज ए बैरियर टू द कम्युनिकेशन। नेक्स्ट स्टेप प्रोसेस हमारा है कंट्रोलिंग का। देयर आर 5 स्टेप्स: सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, देन एनालाइजिंग डेविएशन इफ एनी, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। अगर तो सारा कुछ सही सही चल रहा है फिर तो कोई करेक्टिव मेजर लेने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब आप अपने गोल को थोड़ा, स्टैंडर्ड को थोड़ा इंक्रीज कीजिए, जो आपने सेट किए हैं परफॉर्मेंस के, तो उसको आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उसके बाद हमारी मेजरमेंट होगी, कंपेयरिंग एक्चुअल एंड मेजर्ड परफॉर्मेंस, देन एनालाइजिंग डेविएशन, देन लास्ट टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। लास्ट इज अ ट्रेडिंग प्रोसीजर. For this, I was saying that many students skip this, and this is the most important trading procedure. Selection of broker. सबसे पहले आप ब्रोकर को सिलेक्ट करोगे कि आपने किसके थ्रू क्या परचेज करना है, किसके थ्रू, सबसे इंपॉर्टेंट। देन ओपन ए डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट ओपन करोगे, नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस कर दोगे। ये 3 स्टेप्स इजी हैं, है ना। लेट्स गो फर्दर। मैच दी शेयर एंड बेस्ट प्राइस, जो बेस्ट प्राइस दे रहा आप उससे खरीदो और ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर दो। यहां पर आपने ऐड टू कार्ट किया था, समझ लो नॉर्मल लैंग्वेज में, तो और यहां पर आप ऑर्डर कर रहे हो, एक्चुअल ऑर्डर कर रहे हो आइटम का। देन इशू अ कॉन्ट्रैक्ट नोट, आपके पास जो इनवॉइस आ जाता है तो वो आपके पास आ जाएगा, इशू हो जाएगा। देन डिलीवरी ऑफ शेयर एंड पेइंग पेमेंट, आपके पास जो प्रोडक्ट वो डिलीवर हो जाता है। और उसके बाद सेटलमेंट होती है, जो कि होती है T+2 ट्रांजैक्शन प्लस 2 डेज। ये अभी T+2 है, पहले T+7 भी हुआ करती थी, T+14, है ना। तो ये है T+2। ये अच्छे से कर लेना यार, मैंने आपको 6 से 7 स्टेप्स बताए हैं, प्रोसेसेस बताए हैं। दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज समटाइम इट्स आस्क्ड इन द वे ऑफ केस स्टडी, बिकॉज प्रीवियस ईयर दिस ट्रेडिंग प्रोसीजर वाज आस्क्ड इन द वे ऑफ case study, and now it may be in the form of direct question. Please do it carefully यार. So in last, thank you because यार आपने बहुत मेहनत की है एग्जाम्स के लिए, और यही 3 आवर्स हैं जो आपका पूरा एक 1 ईयर का जो आपने किया है, मेहनत की है, उसको आपका दिखाएंगे कि हाँ आपने कितने किया। अगर आप ये 3 आवर्स में यार कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे तो मुश्किल है यार, आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा और किसी की नहीं सुननी यार, अपने मन की सुनो। तो बस ऑल दी बेस्ट यार आप सभी को, और कीप डूइंग वेल।